Hello, good evening, students. In 1 minute, we will start the class. Hi, good evening, students. I hope last class was fruitful for you. And with those students whom I shared the PDF, I hope you have taken a printout or in PDF format, whatever you feel comfortable. So I hope you have revised those PDF because whatever you are reading, you should be revising it. Otherwise it will accumulate and then it will be tough for you to move through. Okay. So just a second. Okay, so today we will start the other NCERT, which is also very important, which is uh, Indian Constitution at Work. Okay, this is more of a practical, like last one was more of a philosophical kind of book where you will you understood the basic ideas of political theory, but this one is more about say practical aspect plus philosophical, but the more focus is on Indian Constitution. So if you will read this book, you will understand you will have the basic understanding of how Indian Constitution works. Okay, so let's start. Hana? There are so this PDF. This is of 25 pages. So we will go a little fast because we have to cover one whole book in just 2 hours. Okay, but the pace will be such that you will be able to understand everything. Okay, so let's start. Now the first question is, we have a constitution, हमारे पास एक संविधान है. Why do we need that constitution? Okay, so there are certain reasons. First is it sets the basic rules of society. Okay, just a second. Okay, so it sets up the basic rules of society. So for example, Indian Constitution has said that everyone should be treated as equal. There should be equality. So it has set up the basic rule. Of इसपे आप you cannot discuss that whether we should treat everyone equally or not. Okay. Then second, it specifies who has the power to make decisions and how government will be constituted. So for example, जो law है वो कौन बनाएगा? Parliament बनाएगा. Law को adjudicate कौन करेगा? मतलब who will give judgments on law? Your कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, है ना. एंड हु विल एग्जीक्यूट द लॉ? योर एग्जीक्यूटिव, मतलब जो आपकी गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, है ना, वो. तो देयर इज अ क्लियर डिमार्केशन व्हिच इज डन बाय कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, देन इट आल्सो पुट्स लिमिट्स ऑन द गवर्नमेंट, जो जिसको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, व्हिच आर नेगेटिव राइट्स, कि दीज आर द थिंग्स व्हिच गवर्नमेंट कैन नॉट डू. फॉर एग्जाम्पल, इट कैन नॉट आर्बिट्रेरली अरेस्ट यू. ठीक है, एंड सच लिमिट्स आर फंडामेंटल, मतलब इवन गवर्नमेंट कैन नॉट ट्रेसपास देम. ठीक है. उसके बाद it provides for the aspirations and goals of society in future. Our constitution said that we should live in a casteless society. So that's why under article 17 it abolishes untouchability, or under article 18 it abolishes titles. Okay, so it has a vision for a society which is not divided by caste. उसके अलावा it
provides us with political identity. We are Indians, है ना? So it provides basic norms, and it also provides moral identity. Moral identity means कि we believe in we should believe in equality, we should believe in liberty, we should believe in fraternity, means brotherhood. तो जो हमारे moral guides हैं, moral ideas हैं, that are also provided in the constitution. Okay, now legitimacy of constitution, it simply means why should you follow the constitution. Okay, simply because those who framed constitution had immense public credibility. जो लोगों ने संविधान लिखा था, whether it was B.R. Ambedkar, okay, or whether it was Nehru, so whoever he was, whoever they were who wrote the constitution, they had immense public credibility. So we believe that since they wrote the constitution, it must be good. ठीक है? उसके बाद even though our constitution was never put to referendum, it means कि कुछ जो countries हैं जैसे स्विट्जरलैंड वगैरह है, वहां पे अगर आप constitution amendment लाओगे या अगर कोई constitution लाओगे, you will have to put it through referendum. मतलब you will have to ask public whether they agree with this or not. Obviously this was not possible for India, but still so there was no referendum for constitution, but still it has immense public authority because of the backing of the leaders who were possible. तो अगर नेहरू जी, पटेल जी, B.R. अम्बेडकर अगर ये बना रहे हैं संविधान, so the personality that they had itself is so big that you will accept the constitution. Okay, now how constitutions can be saved. Okay, the more constitutions can be saved का मतलब है कि why should people keep on following it. कभी कभी होता है ना कि coup हो जाता है, या there will be a military coup, or people will stop following, or there will be a civil war. So why is that people should keep following this constitution? तो इसका simple सा answer ये है कि the more a constitution will provide freedom and equality to you, the more you likely you are going to follow it. ठीक है? तो अगर आपको लग रहा है कि संविधान आपके साथ गलत कर रहा है, you will not follow it. But if you feel कि जो constitution है, it is fair with you, then there is a high chance that you will follow it. ठीक है? Then second thing, by making sure that no single institution acquires monopoly. मतलब सिर्फ एक ही institution के पास पूरी की पूरी power नहीं हो. So there is a fragmentation of power. There is legislature which makes laws, there is executive, there is judiciary, then there are independent bodies. तो अगर मान लो the de facto the real power in this country, maximum power has prime minister, but prime minister alone cannot do a lot of things. Like अगर कोई वो law लाते हैं prime minister, and if Supreme Court उसको स्टे लगा देता है, तो प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट डू एनीथिंग, है ना? सो जो ये चेक्स एंड बैलेंसेस है, दैट इज आल्सो हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी saved. ठीक है? देन फाइनली इंटेलिजेंट इंस्टीट्यूशनल डिजाइन. इट सिंपली मींस कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा रिजिड है, सो इट हैज अ हाई चांस दैट इट विल नॉट वर्क. व्हाई? बिकॉज इट इज सो रिजिड दैट बाय द टाइम 50 साल बाद ये क्या हो जाएगा, आउटडेटेड हो जाएगा. ठीक है? At the same time, if it is very flexible, अगर बहुत ज्यादा flexible है, तो there will be so much changes कि जो original constitution है वो दिखाई नहीं देगा. There will be so many amendments to that constitution. So in this parlance, what is the best thing that we can do? We have framed a constitution which is neither very flexible nor very rigid. It is in the between. ठीक है? तो इस केस पे क्या होता है कि we have a very intelligent institutional design. Now how constitution was made, जो हमारा संविधान है वो आया कहाँ से? तो it was made by Constituent Assembly. Constituent Assembly का आइडिया किससे आया था? कैबिनेट मिशन से आया था ना, that we will read in history. कैबिनेट मिशन in 1940, है ना, presented the idea of Constituent Assembly. जब यहाँ के जो members थे, some were indirectly elected and some were nominated by princely states. Then ये कैबिनेट मिशन इसका बेसिस था. Then seats were proportional to the respective population. मतलब कि जिस स्टेट से, या स्टेट नहीं, प्रोविंस, जिस भी प्रोविंस से आते थे, या जो इंडियन स्टेट था, मतलब जो प्रिंसली स्टेट्स थे उससे आते थे, तो जो सीट्स थी, इट वाज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन. वो आज भी है हमारे लोकसभा राज्यसभा में. ठीक है? देन it was based on the principle of deliberation. मतलब ये important point है. These things you can add in your GS answers. Okay, कि it was a deliberative body. It simply means कि it discussed issue. Each issue was discussed with great sophistication. ठीक है? हर issue को discuss करते थे, उसके बाद they used to pass it. केवल एक provision था. There was only one provision which was passed without any debate, and that was universal adult franchise. Universal adult franchise means कि after a certain age anyone can anyone can vote.
पहले क्या था कि जो आपके वेस्टर्न जो कंट्रीज थे, इन दैट कंट्रीज इवन दो देयर वाज डेमोक्रेसी, बट वुमेन कुड नॉट वोट, या जो ब्लैक थे दे कुड नॉट वोट, सो देयर वाज अ बिग डिस्क्रिमिनेशन. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सेज कि एवरी पर्सन हु इज अ सिटीजन हैज द राइट टू वोट एक्सेप्ट फॉर एक मेरिट होती है, दैट इज एज. तो हमारे कंट्री में पहले कितनी थी? 21, नाउ इट इज 18. So anyone who is 18 plus is eligible to vote irrespective of their caste, gender, religion, whatever it is. ठीक है? Then it was based on the concept of public reason. पब्लिक रीजन का मतलब ये होता है कि वी बिलीव कि जो पब्लिक है, जो जनता है, इट इज रीजनेबल, दे आर नॉट बैड पीपल. जो जनता है, दे आर नॉट बैड पीपल. सो इफ यू विल पुट एन इशू इन फ्रंट ऑफ यू एंड इफ यू विल ट्राई टू जस्टिफाई इट विथ रीजन, दे विल एक्सेप्ट इट. ठीक है? सो दैट्स व्हाई जो ये पूरा संविधान था, इट वाज बेस्ड ऑन द रीजनड आर्गुमेंट. दे डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ थिंग. ठीक है? अब इसको बनाया कैसे गया? सी ऑब्वियसली आप यू कैन नॉट जस्ट राइट इट, you have to have committees. So there was 8 major committees which drafted the provisions of the constitution. Okay, so there were 8 major committees जिनके different अब उस committee में से क्या था, we will discuss it when we will read the constitution, but they were the one who particular provisions जो थे constitution के वो draft किए थे. जो drafting committee थी, that was the final committee जिन्होंने पूरा का पूरा final draft तैयार किया था, and drafting committee was headed by Dr. B.R. Ambedkar. Okay, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय नेहरू इन 1946. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मेनली अंडरलाइन द फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि हमारा संविधान होने क्या वाला है. ठीक है? व्हाट काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विल हैव. थोड़ा सा बिकॉज ऑफ ये जो आपका बुकमार्क वगैरह डालने के कारण थोड़ा सा जो ये आपके डायग्राम से ये ऊपर नीचे हो गए हैं, बट इनको सही कर दिया जाएगा ना, विद टाइम वी विल करेक्ट दिस. तो नाउ बिकॉज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, it has borrowed a lot. It simply means कि it is some parts are original but most part are borrowed from other constitution. दूसरे संविधानों से हमने लिया है. ठीक है? तो क्या क्या चीजें ली हैं? तो from British Constitution we have taken first past the post system. ये क्या है? We will हम आज ही डिस्कस करेंगे ये. Then parliamentary form of government, the idea of rule of law. Yesterday we discussed institution of speaker and law making procedure. ठीक है? ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस में डायरेक्टली आ जाते हैं. ठीक है? सो जस्ट रीड देम. Irish Constitution हमने लिया है, Directive Principles of State Policy. From French Constitution we have picked up the principle of liberty, equality and fraternity. From Canadian Constitution जो quasi federal, see Canadian Constitution से ये भी रखना कि whatever makes our central government stronger, that has been taken from Canadian government, and whatever strengthen the federal character, ठीक है, that has been taken from US Constitution. तो आपका जो fundamental rights हो गया, power of judicial review हो गया, independent judiciary हो गया, these have all been picked from US Constitution. Okay, so तो इस पे ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं कि our constitution is both a borrowed document and original also, है ना. so जो भी हमने borrow किया है, we have discussed that. So this was the basic foundational aspect of constitution. Now rights in constitution. rights की definition हमने कल पढ़ी थी, है ना. यहाँ पे एक story है in NCERT of Marshall Lalung, who said कि he was arrested at the age of 23 or 77 years. For 77 years he was kept in judicial custody. ठीक है? अब सपोज कि आपने कुछ भी नहीं किया है, बट पुलिस आपको जेल में डाल देती है, एंड देन फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ यू आर लिविंग इन जेल फॉर यू हैव डन नथिंग. जस्ट मतलब एम्पैथाइज करो, जस्ट ट्राई टू इमेजिन, जस्ट ट्राई टू बी इन द प्लेस ऑफ दिस पर्सन. योर होल लाइफ हैज बीन वेस्टेड बिकॉज ऑफ फॉल्टी जुडिशियल एंड पुलिस प्रोसेस. ठीक है? तो दैट्स व्हाई राइट्स आर इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई कि कोई आपको जबरदस्ती जेल में ना डाल दे या किसी भी चीज के लिए जबरदस्ती फ्रेम ना कर दे. वी नीड राइट्स. ठीक है? अब राइट्स का आइडिया कहां से आता है? तो इट कम्स फ्रॉम बिल्स ऑफ राइट्स which is from United States, जिसने सबसे पहले प्रेजेंट किया था. So जो बिल्स ऑफ राइट्स है, इसमें जो आपके राइट्स हैं, they are mentioned and protected by constitution. ठीक है? They are not mentioned in any law, they are not mentioned by any executive action, but by the constitution itself. So they are the supreme source of law. Okay, and they prohibit government from acting against rights of individuals. मतलब they are negative rights. They protect you from government. ठीक है? Now fundamental rights in constitution, इसका आइडिया कहां से आता है? तो जो सबसे पहले कमिटी बनी थी, मोतीलाल नेहरू कमिटी in 1928. They were the first to demand bills of rights.
तो दे वर द वन हु डिमांडेड कि देयर शुड बी अ बिल ऑफ राइट्स, देयर शुड बी फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब जो ऑर्डिनरी लीगल राइट्स हैं, ऑर्डिनरी लीगल राइट्स क्या है, फॉर एग्जांपल योर राइट टू इंफॉर्मेशन और योर राइट टू एजुकेशन, ठीक है, और योर राइट टू वर्क, जैसे मनरेगा है ना, एमजी नरेगा, जहाँ पे 100 दिन का यू विल गेट 100 डेज guaranteed work, ठीक है। So these are all legal rights. मतलब they have come from law like RTI Act 2005, RTE Act. So they have all came under law. लेकिन जो आपका fundamental rights होते हैं, they are from Constitution itself, and judiciary has the power and responsibility to protect those fundamental rights, ठीक है। तो directly they come from Constitution, and the judiciary will be protecting those things. Now जो आपके fundamental rights होते हैं, as we have discussed also, they are not absolute and they are not unlimited, okay। ना तो ये absolute होते हैं सॉरी, एंड नीदर दे आर अनलिमिटेड। दैट मीन्स कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें लिमिटेशन लगाई जा सकती है, सर्टेन काइंड ऑफ लिमिटेशन कैन बी पुट अंडर फंडामेंटल राइट्स, एंड देन देयर कैन बी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, जो हमने डिस्कस किया हुआ है। नाउ अगेन ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो वी विल करेक्ट दिस। First is right to equality. So 6 types of rights are there, 6 type of fundamental rights. ये यूपीएससी में पूछा भी हुआ है 2020 में, and innumerable times पूछा हुआ है, not just in 2020, okay। So first is right to equality. Right to equality क्या होती है? You are equal before law. ये सब हम डेप्थ में पढ़ेंगे when we will read constitution, ठीक है। तो most of the things will be overlapping, so whatever we will be reading in depth I will just quickly glance through। तो जैसे आपका right to equality है कि you have equal protection of law, there should be no discrimination, you have equal access to shops, bathing ghats divide नहीं हो सकते कि ये ठाकुरों के हैं, ये ब्राह्मणों के हैं, ये दलित के हैं, you cannot divide it like that। there will be equality of opportunity, there is abolition of titles। जैसे पहले होते थे राय बहादुर या शमशेर बहादुर, ये सब चीजें अब टाइटल्स नहीं लगते हैं ना, या सर वगैरह जो लगता है, लाइक नाइटहुड जो मिलता था ब्रिटिशर से, वो सब नाउ हैज बीन रिमूव्ड। ऑल्दो यू कैन यूज सर्टेन टाइटल्स लाइक डॉक्टर और कैप्टन, बट वो सब हम वी विल डिस्कस इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एंड देन एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17, दिस इज आर्टिकल 18। देन यहीं पे पीछे ये लिखा हुआ है कि जो आर्टिकल 16(4) है, दैट प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन, ठीक है। और रिजर्वेशन क्यों प्रोवाइड किया है एंड व्हाट इज द जस्टिफिकेशन, दैट वी discussed in yesterday's class. Then second set of rights is right to freedom. You have right to speech, you can express yourself, you can assemble peacefully without arms, without weapon, है ना। आप एसोसिएशन बना सकते हो, यू कैन मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यू कैन रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ दिस कंट्री, यू हैव द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है। एंड यू हैव द राइट्स ऑफ एक्यूज्ड एंड कन्विक्ट्स। फॉर एग्जांपल इफ यू आर अरेस्टेड, then also you have certain fundamental rights, then also जो आपका सरकार है वो that will protect you, sorry, the constitution will protect you, ठीक है। However, ये जितने भी rights हैं, that does not means freedom to do anything one desires, as I've told you कि there will be restrictions on that, ठीक है। Now something about right to life and personal liberty, that no one, आपकी जो life है, it cannot be taken except for the procedure laid down under law। मतलब जो फांसी की सजा होती है, तो आपको फांसी की सजा दे सकता है स्टेट, but only according to law, not on their whims and fancies, okay। So there cannot be any whims and fancies। आपको जो भी सजा मिलेगी, that will be according to law, not according to any executive action, ठीक है। Then right to life means life with human dignity। It just not means कि right to life का मतलब you can have an animal like existence, ठीक है, उनको पास भी जीने का अधिकार है, but you have the right to dignity, मतलब you should have good health, ठीक है, you should have good education, you should have job, government should provide employment opportunity so that you can live a dignified life। It should not be just a life ki you are just living that life, ठीक है। Then preventive detention, this is a controversial issue। preventive detention का मतलब ये होता है कि suppose if you have committed a crime and after that you have arrested, that is fine, but sometimes it feels like you can do something which will be violative of law, so you are arrested before doing that thing, ठीक है। तो अगर आप कोई ऐसा सरकार को लगता है कि आप कोई क्राइम कमिट कर सकते हो in the future, so for that if you are arrested, that is called preventive detention, ठीक है। in very few democratic countries have this thing, but in India ये है। so for how long you can be arrested? For 3 months,
उसके बाद गवर्नमेंट को आपको रिलीज करना पड़ेगा। बट इफ मोर देन 3 months, इफ दे वांट टू कीप यू मोर देन 3 months, तो एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा अंडर अ जज ऑफ हाई कोर्ट, एंड ओनली इफ दे विल एग्री देन ओनली दे कैन कीप यू फॉर मोर देन 3 months। ठीक है। नाउ राइट्स ऑफ द एक्यूज्ड, अगर आपको इफ यू हैव बीन अरेस्टेड सो यू हैव 3 rights। ठीक है। क्या क्या 3 rights है? पहला, यू कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर सेम ऑफेंस मोर देन वंस। इफ यू हैव, अगर आपने चोरी की है, इफ यू हैव कमिटेड थेफ्ट, तो अगर आपको 2 साल की सजा हो गई तो 2 साल बाद जब व्हेन यू विल गेट आउट ऑफ जेल, तो उसी क्राइम के लिए आपको फिर से 2 साल की सजा नहीं दी जाएगी। ओनली वन टाइम यू विल बी पनिश्ड फॉर वन क्राइम। ठीक है। नो लॉ शैल डिक्लेयर एन एक्शन इलीगल फ्रॉम बैक डेट। फॉर एग्जाम्पल, आज 14th जून है, जुलाई है, सॉरी, है ना। सो 13th जुलाई को चोरी करना वाज नॉट अ क्राइम, देयर वाज नो लॉ कि चोरी करना इज अ क्राइम। ठीक है। ऑन 14th जुलाई यू हैव मेड अ लॉ। ठीक है। सो इट, अगर किसी ने 13 जुलाई को वो लॉ वायलेट किया, चोरी की है, तो इट विल नॉट अप्लाई टू देम। So the law does not apply retrospectively. However, this is only for criminal laws. ठीक है, not for civil laws. जो civil laws होते हैं, मतलब जो taxations वगैरह होते हैं, वो back date से भी लगाए जा सकते हैं। लॉज होते हैं वो बैक डेट से नहीं लगाए जा सकते। ठीक है। एंड फाइनली, नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। मतलब यू कैन नॉट गो टू कोर्ट एंड से कि आई हैव किल्ड दैट पर्सन, सो कोर्ट विल एक्सेप्ट इट। ओके। कोर्ट विल नॉट एक्सेप्ट इफ यू विल गिव एविडेंस अगेंस्ट योरसेल्फ, अनलेस की जो प्रूवन जो एक प्रोसेस होती है ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसके थ्रू जब वो चीज प्रूव होती है, देन ओनली कोर्ट विल पनिश यू। ठीक है। नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। सो इट मेनली मीन्स कि इट प्रोहिबिट्स फोर्स्ड लेबर and it prohibits employment of children in hazardous jobs. ठीक है। Then next set of right is right to freedom of religion. You have freedom to freedom of conscience and profession. You can follow any religion. You have freedom to manage religious affairs and religious instructions in certain institutions. So basically, it makes country a secular country. कि people have right to follow the religion they want. Okay. ना फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस मींस, कॉन्शियंस मतलब होता है कि जो आपका अंतरात्मा जिसको बोलते हैं ना। सो यू हैव फ्रीडम टू चूज एनी रिलीजन, यू कैन फॉलो एनी रिलीजन यू वांट और नॉट फॉलो एनी रिलीजन। ठीक है। हाउएवर इट इज नॉट अनलिमिटेड। जो आपका कॉन्शियंस है वो अनलिमिटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल, पहले लोगों की कॉन्शियंस होती थी कि सती करना चाहिए, कि if a husband has died then woman should commit sati, so that is not you will commit sati। ठीक है। Similarly, human sacrifice, there are many tribes जो human sacrifice करते थे, स्पेशली इन ओडिशा साइड। ठीक है। सो अब आप ये नहीं बोल सकते हो कि वी हैव फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, वी विल सैक्रिफाइस ह्यूमन। ठीक है। सेकंड थिंग इज, एज आई सेड कि यू कैन फॉलो व्हाटएवर रिलीजन यू कैन, बट रिमेंबर वन थिंग कि फ्री फोर्सिबल कन्वर्जन्स आर नॉट अलाउड। one cannot convert one person without their will. And second thing, one thing is more, that right to convert is also not a fundamental right. Okay, आपके पास conversion का अधिकार नहीं है. This has been clarified by Supreme Courts. The next is cultural and educational rights. So these are 29 and 30, Article 29 and 30. It is mainly कि जो आपकी minorities हैं उनके language culture को protect करेगा संविधान, and then they can establish minority establishments, minority institutions they can establish. And then finally, right to constitutional remedy, that is Article 32. It simply means कि if your rights have been violated, then you can go to courts directly. और कौन से कोर्ट पे आप जा सकते हो डायरेक्टली? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो बेसिकली जो आपका आर्टिकल 32 है, इट गिव्स ब्रेथ या इट गिव्स लाइफ टू ऑल अदर फंडामेंटल राइट्स, कि बिकॉज ऑफ दिस राइट जो आपके दूसरे राइट्स है, दे कैन, मतलब वो फंक्शनल हो जाते हैं। ठीक है। सो दीज आर द बेसिक राइट्स इन विच हमारे संविधान पे जो आर्टिकल 32 है, इस पे यू गेट 5 रिट्स। ठीक है। 5 रिट्स होती है। रिट्स मतलब होती है एक तरीके की एप्लीकेशन होती है विच यू विल अप्लाई टू कोर्ट बिकॉज योर राइट्स हैज बीन वायलेटेड अंडर आर्टिकल 32। ठीक है। सो व्हाट आर दोस 5 रिट्स? फर्स्ट इज हेबस कॉर्पस। सो ये मेनली जब कोई, अगर जैसे एलोपमेंट वाले केस होते हैं, कोई लड़का लड़की भाग जाते हैं, सो मोस्टली जो पेरेंट्स है वो यही लगाते हैं, हेबस कॉर्पस। इस पे पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट। जो अरेस्टेड पर्सन है या अगर इफ मिसिंग पर्सन है तो पुलिस शुड ब्रिंग देम in front of court. That is called habeas corpus. ठीक है। Second is mandamus. Now it says कि जो if a particular
ऑफिस होल्डर मतलब पब्लिक ऑफिस होल्डर, कोई पब्लिक ऑफिशियल है, चाहे वो एसडीएम हो, डीएम है, कोई भी है, इफ दे आर नॉट डूइंग देयर लीगल ड्यूटी, देन कोर्ट कैन कमांड देम टू डू दैट लीगल ड्यूटी। ओके, नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन, नाम से ही पता चल रहा है, इस पे अगर कोई भी हायर कोर्ट मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसको ये लगता है कि जो उसके नीचे की कोर्ट है ना, फॉर एग्जांपल इफ हाई कोर्ट फील्स की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इट इज जो भी जजमेंट वो देने वाली है या जो भी केस वो देने वाली है, दैट इज बियॉन्ड इट्स jurisdiction, दैट केस डज नॉट बिलोंग्स टू अ लोअर कोर्ट, so in that case it can prohibit the lower court from giving any order. Next is quo warranto, it simply means ki if a person is holding a office, then court can ask by what authority you are holding that office. अगर कोई एसडीएम बैठे हुए हैं तो गवर्नमेंट कैन आस्क by what authority you are sitting in that office, ठीक है, and then certiorari, that is also a kind of prohibition ही, but इस पे क्या होता है कि instead of stopping the court, जो कोर्ट है वो केस को ट्रांसफर कर लेती है to a higher authority, कि अगर high court feels कि district court is not eligible to listen to that case, so prohibition it will stop, but in this one it will take the case on itself or any other higher court. Okay, so these were the 5 writs which are present in article 32. okay, now next is directive principle of state policy, ये आपका पार्ट 4 है, बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। सो कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है, इट इज कॉल्ड जस्टिफिएबल मतलब ये होता है, जस्टिसिएबल मतलब कि इफ योर राइट्स आर वायलेटेड यू कैन अप्रोच कोर्ट्स, है ना, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं, दे आर नॉट जस्टिसिएबल, दे आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल। इट मींस कि इन केस योर if state is not following the directive principle, so you cannot go to court and say कि state is not following directive principle, so give some order so that they should follow it. okay, now directive principle क्या करते हैं, ये goals and objectives की जो constitution है, या जो हमारा संविधान है, या जो हमारी सोसाइटी है, या जो हमारी गवर्नमेंट है, whatever some goals and aspirations that they should follow is contained in directive principle of state policy. okay, so इसका गोल क्या होता है ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल? वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों का भला हो, लोगों का कल्याण हो, है ना, वेदर इट इज सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। देन रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का जो जीने की का जो लेवल है, इट शुड बिकम बेटर। देन प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस। सो सम ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कुछ एक लॉफ्टी गोल्स, लॉफ्टी मतलब पॉजिटिव बिग गोल्स जो है वो प्रेजेंट करते हैं। देन दे आर नॉन जस्टिसिएबल राइट्स भी प्रेजेंट करते हैं, मतलब दीज राइट्स आर नॉट जस्टिसिएबल, मतलब यू कैन नॉट गो टू कोर्ट, जैसे एडिक्वेट लाइवलीहुड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, राइट अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू वर्क, right of children to free and compulsory education. See, it is non-justiciable, but it is also part of Article 21A. So of RTE, right to education, so that part is justiciable. okay, ये अंतर याद रखना। then policies मतलब होते हैं जो long term vision होते हैं गवर्नमेंट के, in long term what government should do. so there should be uniform civil code, there should be prohibition in the consumption of alcoholic liquor, ठीक है, कोई भी जो इंटॉक्सिकेंट्स होते हैं उनको उन पे बैन लगना चाहिए, जैसे बिहार में लगाया हुआ है या गुजरात में लगाया हुआ है, ठीक है। देन प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज, प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर ऑफ यूजफुल कैटल्स एंड प्रमोशन ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स। एक्चुअली यूजफुल कैटल्स नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, गलत लिखा है, किसी भी तरीके का क्लैटर जो कैटल होता है उसको स्लॉटर का एक लॉन्ग टर्म विजन दिया हुआ है, ठीक है। एंड फाइनली विलेज पंचायत आर्टिकल 40 की जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है उनको एम्पावर करना है। तो आप देख सकते हो कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, इट इज अ काइंड ऑफ पॉजिटिव राइट्स, मतलब राइट्स आर नॉट जस्ट, ये जो आपका लिबर्टी है, इट इज नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स, बट आल्सो द कैपेसिटी टू डू समथिंग गुड, समथिंग बेटर। सो दीज अगर ये सरकार फॉलो करेगी, सो यू पीपल कैन हैव अ वेरी गुड लाइफ, ठीक है। सो दे आर अ काइंड ऑफ पॉजिटिव राइट्स। सो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट से एनीथिंग अबाउट एनफोर्सिंग दीज राइट्स, है ना, एंड सो दैट्स व्हाई ये जो है इनका ये नेचर है, ये नॉन जस्टिसिएबल है, ठीक है। नाउ इफ यू सी द रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सो देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। वो कॉन्फ्लिक्ट हम वी विल डिस्कस इन when we will read the constitution, but basically जो आपका fundamental rights है और जो आपका directive principle है, suppose if you want to implement कि directive principle बोलता है कि equal livelihood, so if everyone should have equal land,
तो लेकिन जब आप इक्वल लैंड करने की बात करोगे तो अर्लियर, नॉट नाउ बट अर्लियर, जो राइट टू प्रॉपर्टी थी, इट वाज अ फंडामेंटल राइट, तो इट वाज क्लैशिंग विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है। सो अ लॉट ऑफ कोर्ट केसेस वगैरह हुए, बट बेसिकली आप ये समझ लो कि केशव नंदा भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हुई है, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं दे आर अबव डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है। So directive principle can fundamental rights cannot be compromised for directive principle, but such amendment should not violate the basic structure of constitution, ठीक है। basic structure क्या है, that we will discuss in as I said, because we will discuss it in depth, but basic चीज आपको समझ में आ गई होगी। So next is election and representation. So we are a democracy, we are a democratic country, हमारे यहाँ election होते हैं। So first question that arises is, can we have a democracy without holding elections? क्या बिना इलेक्शन के डेमोक्रेसी हो सकती है? See, if you will see कि डेमोक्रेसी जो है, it is not just election, है ना, इलेक्शन is just a part of democracy, ठीक है। So अगर आप larger sense पे देखोगे, if you will look it from the larger parlance, then obviously there can be democracy without election if people have freedom to criticize the government, if people have freedom to change the government, if government is not following the pro people policy, ठीक है। एंड देन सेकंड इज, कैन वी होल्ड इलेक्शंस विदाउट डेमोक्रेसी? ये दो क्वेश्चंस है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है, इट टॉक्स अबाउट रिप्रेजेंटेशन, कि इलेक्शन क्यों होते हैं? बिकॉज यू वांट टू बी रिप्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। अब ऑब्वियसली यू कैन नॉट डायरेक्टली बिकम पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, सो यू चूज योर रिप्रेजेंटेटिव्स, चाहे आप एमपी हो, चाहे एमएलए हो, या अगर लोकल बॉडीज पे जिला पंचायत पे मेंबर्स हो, वार्ड मेंबर्स हो, है ना, सो यू वोट फॉर देम, so you become a proxy, kind of like their proxy, like they become your proxy, like you have chosen them, so they are representing you in the parliament or state legislature or whatever it is there, ठीक है। So because we cannot take part in direct part in policy making, so that's why we elect representatives, ठीक है। जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, वहां पे सिटीजन्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, so there will be no parliament there, no state legislature there, people can directly participate in law making, है ना। But this is nowhere earlier in Greek city states, जब बहुत पहले सिटी स्टेट्स होते थे ग्रीस में, वहां पे ये पॉसिबल था। नाउ इट इज ऑलमोस्ट नोवेयर, ठीक है। और बिकॉज some kind of representation is required, because representation is a kind of स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी, ठीक है। लेकिन अगर आप इंडिया में, देयर इज वन इंस्टीट्यूशन ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, वो है ग्राम सभा। ग्राम सभा में जितने भी एडल्ट इलेक्टर्स होते हैं ऑफ वन एरिया, दे कैन डायरेक्टली सिट एंड पार्टिसिपेट एंड दे कैन टेक डिसीजंस, ठीक है। जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है, जैसे इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे वी चूज अवर रिप्रेजेंटेटिव्स and they have limited role in taking decisions and running the administration, मतलब us citizens की बात हो रही है ना, we do not have any role, we are not directly involved in making policies, ठीक है। वो जो हमारे MP MLAs हैं वो बनाते हैं कानून, we just choose them, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था कि there can be a democracy where कि जहाँ पे elections हो but democracy ना हो, ठीक है। so it is in China, कि चाइना में इलेक्शंस होते हैं बट इट इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बिकॉज देयर इज ओनली वन पार्टी, जो कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की, और जो इलेक्शंस होते हैं इट इज जस्ट विद इन दैट पार्टी, नॉट अक्रॉस पार्टी। फॉर एग्जांपल इंडिया में वी हैव इंडियन नेशनल कांग्रेस, वी हैव बीजेपी, वी हैव सीपीआई, वी हैव टीएमसी, वी हैव एन नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। तो देयर इज अ बिग चांस की न्यू पॉलिटिकल पार्टी में इमर्ज और दे विल विन द इलेक्शन, बट दैट इज नॉट पॉसिबल इन चाइना, बिकॉज चाइना में एक बहुत ही लिमिटेड फॉर्म ऑफ इलेक्शन होता है, ठीक है। नाउ इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, सो इंडिया में क्या है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, ठीक है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, सिंपल आपको डेफिनेशन बता देता हूं। सपोज, वैसे आई होप कि ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग दिस आल्सो, पर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में क्या होती है, कंस्टिट्यूएंसी होती है। सपोज ये कंस्टिट्यूएंसी एक सपोज चंडीगढ़ को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। सो इस कंस्टिट्यूएंसी से एक एमपी आते हैं, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ, है ना, बिकॉज जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है दैट इज फ्रॉम लोकसभा। सो इनको कैसे चूज किया जाएगा कि देयर विल बी एन इलेक्शन, उस इलेक्शन में कितने कैंडिडेट्स खड़े हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ, जितने भी चाहें, ठीक है। अब उस पे द पर्सन हु विल गेट मैक्सिमम वोट्स, ठीक है। तो अगर मान लो 10 वोट पड़े, so one person won 4 vote, one person won 3 vote, and then other person won 1 1 2 1 1, like that they won, है ना। So in that case the person who has won 4 votes will win, simple, the person who will get maximum vote will win। So here you do not have to get 50% of the votes,
ठीक है, आपको 50% वोट मतलब एटलीस्ट 5 वोट नहीं चाहिए जीतने के लिए. द पर्सन हु विल गेट मैक्सिमम वोट दैट विल विन. सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज प्लूरैलिटी सिस्टम. इट इज अ प्लूरैलिटी सिस्टम. बट इसका इशू ये है कि लार्ज नंबर ऑफ वोट्स जो है दे गेट वेस्ट. जैसे ये 3-1 जो है, जिन्होंने भी ये वोट दिया था, इनको इनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है ना. दे डू नॉट हैव एनी वैल्यू बिकॉज ऑफ दैट. Now second is proportional representation. See, proportional representation मतलब कि जो proportion है population में, किसी भी, चाहे वो religion हो, चाहे वो language हो, जो भी हो, उसका उस proportion के हिसाब से if you will put representation that is called proportional representation. इसके there are various types of proportional representation. ठीक है, तो जो NCERT है उसमें इजराइल का सिस्टम बताया गया है कि जहां पे एक बार वोट काउंट किए जाते हैं, देन ईच पार्टी इज अलोकेटेड द शेयर ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट इन प्रोपोर्शन टू द शेयर्स ऑफ वोट. तो फॉर एग्जांपल जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस है, अगर वो 30% सीट जीतते हैं इंडिया में, तो देन आल्सो इट इज पॉसिबल कि दे विल ओनली गेट 10% ऑफ द सीट्स, सॉरी 30% ऑफ वोट्स अगर उनको मिले हैं, तो इट इज आल्सो पॉसिबल कि तब भी वो 10% सीट ही मिलेगी उनको पार्लियामेंट में, लोकसभा में. ठीक है, हाउएवर इन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इफ सम पार्टी हैज गॉट 30% ऑफ द सीट, so they will get 30% of the votes, then they will get 30% of the seat in the जो भी उनका पार्लियामेंट है या जो भी उनका हाउस है वो. ठीक है, सो ईच पार्टी फिल्स इट्स कोटा ऑफ सीट्स. दैट इज द मेन थिंग, दैट इज व्हाट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज. ठीक है, नाउ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के दो वेरिएशंस होते हैं. फर्स्ट इज इन कंट्रीज लाइक इजराइल एंड द नेदरलैंड्स. यहाँ पे क्या होता है कि पूरा का पूरे कंट्री को एक कंस्टिट्यूएंसी की तरह they will look at it as a single constituency, and then जो वोट्स है वो शेयर किया, वो दैट विल बी शेयर्ड, जो मैंने आपको बताया वोट्स पे, क्योंकि हमारे यहाँ तो मल्टीपल कंस्टिट्यूएंसीज होती हैं. वी हैव 543 कंस्टिट्यूएंसीज जहाँ पे वोट होते हैं. बट इन दीज, बिकॉज दीज आर स्मॉल कंट्रीज, तो यहाँ पे पूरे कंट्री को सिंगल कंस्टिट्यूएंसी पे माना जाएगा. एंड देन पीपल विल वोट फॉर पार्टी. ठीक है, आप पार्टी को वोट करोगे, एंड विच एवर पार्टी विल गेट द परसेंटेज ऑफ सीट्स, दैट परसेंट ऑफ सीट विल बी एलोकेटेड टू दैट पार्टी इन द पार्लियामेंट या जो भी उनका हाउस है. ठीक है, उस पे. देन अदर मेथड जो होता है उसको बोलते हैं मल्टी मेंबर कंस्टिट्यूएंसी. मल्टी मेंबर कंस्टिट्यूएंसी का मतलब होता है, हमारे यहाँ सिंगल मेंबर कंस्टिट्यूएंसी होती है कि अगर चंडीगढ़ है और वहां से एक ही एमपी बनेगा तो एक ही बनेगा. बट मल्टी मेंबर में क्या होता है, देयर कैन बी मल्टीपल मेंबर्स दैट कैन विन फ्रॉम अ सिंगल जो कंस्टिट्यूएंसी है उससे. ठीक है, ये जो आपका अर्जेंटीना है, पोर्तुगल है, वहां पे होती है. यहाँ पे ईच पार्टी विल प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, एंड देन यू जो आपको वोट करना पड़ेगा, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू, वो लिस्ट सिस्टम होता है. दैट वी विल डिस्कस क्या होता है लिस्ट सिस्टम. बेसिकली यू हैव टू पुट प्रेफरेंस. ठीक है, कि फॉर एग्जांपल ए बी सी डी है ना, तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस सपोज बी को डाला, सेकंड यू हैव पुट ऑन सी, थर्ड यू हैव पुट ऑन, ऐसे करके. सो एक सर्टेन कोटा होता है, और जितने जो लोग वो कोटा क्रॉस कर जाते हैं, दे बिकम द मेंबर फ्रॉम दैट कंस्टिट्यूएंसी. इसका बेनिफिट ये होता है कि जो माइनॉरिटीज हैं, minorities which anyway can never win in first past the post system, so they can win in this kind of system. That is the benefit of that. ठीक है, तो हमारा जो इंडिया है उस पे लेकिन इन बोथ वेरिएशंस जो दोनों है, पीपल वोट फॉर पार्टी एंड नॉट कैंडिडेट. जैसे इंडिया में तो आप कैंडिडेट को वोट कर रहे हो ना, कि सपोज अगर वाराणसी से पीएम मोदी खड़े हैं, तो ऑब्वियसली यू नो यू आर वोटिंग फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी इन वाराणसी, है ना. हाउएवर ये जो दो वेरिएशंस है, चाहे ये मल्टी मेंबर कंस्टिट्यूएंसी हो या सिंगल कंस्टिट्यूएंसी हो, इस पे यू वोट फॉर अ पार्टी, और फिर पार्टी डिसाइड करती है कि हु विल बी द कैंडिडेट हु विल बी सिटिंग इन द ऑफिस. ठीक है, हमारे यहाँ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, बट वी आल्सो हैव a PR system, a proportional representation system in limited scale, जहाँ पे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्शंस ऑफ राज्य सभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ये होते हैं. इस साल देयर इज अ इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट, है ना. सो इट इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि दे विल आस्क दैट क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन इटसेल्फ. ओके, just a second. Okay, then there is a third variant. Third variant is called proportional representation with single transferable vote. ये हमारे जो इंडिया में होता है. ठीक है, इस पे क्या होता है, every state has a specific quota of seats in राज्य सभा
जो वोटर्स होते हैं वो एमएलए होते हैं, ठीक है। राज्यसभा के पोल में ऑब्वियसली एमएलएज आर द वोटर। अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज में भी था बिकॉज ऑफ महाराष्ट्र दिस थिंग। सो यहाँ पे वही जो आपका लिस्ट है कि यू विल हैव अ लिस्ट कि जहाँ पे आपको प्रेफरेंस डालनी पड़ेगी, एंड देन द विनर विल बी वन हु विल विन बाय फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला क्या होता है, वो ये होता है कि टोटल जितने भी वोट्स पोल किए गए, टोटल वोट्स पोल्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड +1 सो दिस इज हाउ द फॉर्मूला वर्क्स। अगर आप पीडीएफ में ये एग्जांपल देख सकते हो ना, इवन दो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट बट जस्ट यू कैन सी कि अगर 200 एमएलए है तो जो कोटा होगा टू विन विल बी 40+1, ठीक है, फ्रॉम दिस फॉर्मूला। एंड जो वोट्स है वो काउंट किए जाएंगे किस पे, फर्स्ट प्रेफरेंस पे, कि जो भी आपने फर्स्ट प्रेफरेंस जिस कैंडिडेट का डाला हुआ है वो पहले किए जाएंगे, एंड जो लोएस्ट है मतलब 4 जिसको सबसे ज्यादा दिया है दैट पर्सन विल बी एलिमिनेटेड, देन देयर विल बी 3। तो जो 3 में जो 4 के जो सेकंड चॉइस थी, मतलब 4 में बहुत लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस डाला होगा, बट 4th में जिसने सेकंड प्रेफरेंस डाला था ऑफ अदर कैंडिडेट्स, दैट विल बिकम फर्स्ट प्रेफरेंस एंड दैट विल ऐड टू द कोटा ऑफ अदर कैंडिडेट्स टिल समवन रीचेस टू दिस जो मिनिमम कोटा है उस पे, ठीक है। नाउ व्हाई हैव, जो हमारा लोकसभा है, ये तो राज्यसभा की बात हो गई, बट जो हमारा लोकसभा है उसमें हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, व्हाई डिड वी चूज फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, बिकॉज एज यू कैन सी इतना ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ रहा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मेथड, जबकि जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है इट इज वेरी सिंपल। देन इन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम यू आर नॉट जस्ट choosing a party but also candidate. For example, if you are voting for Rahul Gandhi, so you are not just, you are aware that you are voting for Rahul Gandhi and you are also aware that you are voting for Indian National Congress. However, in proportional representation you are just voting for a political party, ठीक है। Then proportional representation में क्या होता है, it usually does not leads to clear majority. Why? Because seats जो है they are divided on the basis of votes. For example, अगर बीजेपी 31% वोट जीत के 67% majority बना रही है ना, so it is good in the form of कि now they have a majority of government, so there will be a stable government. But जो proportional representation होता है उस पे there is no stable government. आप इजराइल में ही देख सकते हो कि कितनी बार इलेक्शन हो रहे हैं वहां पे बार-बार, है ना, so there is no stable government there. And even if there is some instability in first past the post system, then there is always a choice of coalition बना के आप एक stable government बना सकते हो, ठीक है। Then proportional representation जो है ये आपकी कम्युनिटी पॉलिटिक्स को, बिकॉज एवरीवन विल वोट फॉर देयर ओन कम्युनिटी कैंडिडेट्स, ठीक है, उनको वोट कर देंगे। अगर कोई सपोज यादव है या कोई ब्राह्मण है या कोई ठाकुर है, तो they will vote for their own separate candidates so that they can get representation because of proportional representation, because minorities also get representation in there. But जो first past the post system है, it encourages voters from various social groups to come together and win an election. तो वहां पे आपको कई सारे, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे across caste system है, they will come together, they will form a social group so that one candidate should win, okay। नाउ जैसे जॉब्स में रिजर्वेशन है वैसे ही कंस्टिट्यूएंसीज में भी रिजर्वेशन है। क्यों? बिकॉज कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को कवर करने के लिए एंड टू अवॉइड सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट जो थे वो ब्रिटिश टाइम पे होते थे, उस पे क्या होता था, बिकॉज दे वांटेड टू कि एवरी कम्युनिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड। तो हिंदू जो था दे कैन ओनली वोट फॉर हिंदू, मुस्लिम जो है दे कैन ओनली वोट फॉर मुस्लिम। सो व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस कि एक कम्युनल पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई। टू अवॉइड सेपरेट इलेक्टोरेट, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए रिजर्वेशन लाया गया, ठीक है। अब ये रिजर्वेशन कौन सी सीट्स रिजर्व होंगी, है ना, सपोज एक स्टेट है जहां पे 4 सीट्स हैं, ए बी सी डी, और एक सीट विल बी रिजर्व, ठीक है। तो कौन सी सीट रिजर्व होगी ये कौन डिसाइड करेगा? एक इंडिपेंडेंट कमीशन जिसको बोला जाता है डिलिमिटेशन कमीशन, ठीक है। हु अपॉइंट्स डिलिमिटेशन कमीशन? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, एंड देन इट वर्क्स विथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसका पहला पर्पस क्या है, जो ये लाइन मैंने बनाई है, ये जो कंस्टिट्यूएंसीज है इनकी लाइन ड्रॉ करना, दैट इज इट्स फर्स्ट वर्क। एंड सेकंड इज एक कोटा ऑफ SC/STs फॉर योर MP MLA, मतलब जो आपका पार्लियामेंट और जो आपका स्टेट लेजिस्लेचर है, देयर इज नो OBC रिजर्वेशन इन दैट, हो ना, जस्ट SC/ST रिजर्वेशन। सो जो कोटा है दैट इज प्रोवाइडेड बाय डिलिमिटेशन कमीशन की किस सीट, कौन सी सीट रिजर्व होगी, ठीक है। एंड जो रिजर्व सीट्स हैं दैट कैन बी रोटेटेड, कि पहले B हो गई, नेक्स्ट इलेक्शन में D हो गई, देन C हो गई, देन A हो गई, ठीक है। Now reservation of constituencies में there is always a issue of women reservation. There is no women reservation in parliament or state legislature. However in जो आपका local body elections हैं उस पे there is women reservation, ठीक है। Now ये तो बात हो गई कि इलेक्शन होते हैं।
अब इलेक्शन करवाए कैसे जाते हैं, हाउ कैन वी हैव अ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस? सो वी हैव यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। देन एनीवन कैन कंटेस्ट इलेक्शन इफ दे आर 25 प्लस, अगर 25 साल से ऊपर के हो तो आप चुनाव लड़ सकते हो, लोकसभा का या विधानसभा का, ठीक है। देन इन ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, देयर इज अ लिमिटेशन इन दिस, इट इज नॉट एन अनलिमिटेड राइट, ठीक है। ये यूपीएससी में कई बार पूछा भी हुआ है। सो इफ अ पर्सन हु हैज गॉन इनटू इम्प्रिजनमेंट, मतलब जेल गया है एक क्राइम के लिए जिस क्राइम की सजा मोर देन 2+ ईयर्स है ना, मतलब सब सीरियस क्राइम है, तो दे आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कंटेस्टिंग द इलेक्शंस, दे कैन नॉट फाइट इलेक्शंस, ठीक है। देन हमारे पास एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है विच इज अंडर आर्टिकल 324, और ये क्या करते हैं, मेनली कंडक्ट कराते हैं इलेक्शन। टिल 1989 it was a single member body, then it became multi member, then again it became single member, but now from 1993 it is now a 3-member body. This was a question in UPSC 2020, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ था कि यूपीएससी उसमें ये दिया हुआ था कि इट इज अ 5-member बॉडी, है ना, तो ऑब्वियसली 5 नहीं है, 3 है। देन जो मीटिंग्स होती हैं ऑफ इलेक्शन कमीशन, वो प्रिसाइड कौन करता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज वेरी हाई रैंकिंग आईएएस ऑफिसर, और जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं वो भी आईएएस ऑफिसर्स ही होते हैं ना। हाउएवर रिमेंबर दिस थिंग कि वो प्रिसाइड करते हैं, बट ही डज नॉट हैव मोर पावर देन इलेक्शन कमीशंस, मतलब जो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनकी भी इक्वल पावर है, ऑल 3 हैव इक्वल पावर्स, ठीक है। एंड देयर इज अ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, कि मतलब जो इलेक्शन कमिश्नर है या तो वो 6 साल तक रह सकते हैं या 65 ईयर्स तक रह सकते हैं, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। इलेक्शन कमीशन करता क्या है, जो आपकी वोटर लिस्ट होती है दे प्रिपेयर दैट, ठीक है। फिर ये टाइमिंग ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन शेड्यूल उसको प्रिपेयर करते हैं। दे कैन पोस्टपोन एन इलेक्शन, दे कैन कैंसिल एन इलेक्शन, ठीक है। दे इंप्लीमेंट द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो आचार संहिता होती है वो लगाते हैं। एंड दे अवार्ड्स रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज और जो सिंबल्स है, फॉर एग्जांपल भाजपा का सिंबल है आपका लोटस, या जो फॉर एग्जांपल इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पंजा है ना, हैंड पाम जो है वो उनका सिंबल है। तो दीज आर ऑल एलोकेटेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। Now there is a big debate on electoral reforms कि how can we have a better elections। तो ये आपका मेंस का पार्ट है मेनली, कि we should have, whether we should have first past the post system or proportional representation, then should there be a 1/3 reservation for women also, money control की, क्योंकि जो पैसा इतना बहाया जाता है इलेक्शन में, criminals जो है वो लड़ते हैं इलेक्शन, then use of caste and religion, then law for functioning of political parties, because जो political parties है उनको they function very independently, there is no law to overlook their work, ठीक है। so these are the issues which जो है जो एक common election platform है which it faces, ठीक है। now next is chapter 4 is executive, so just we will start it in just 30 seconds. ओके, एग्जीक्यूटिव नाम से ही पता चल रहा है जो एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब हु इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज और लॉज, ठीक है। सो दे इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज और एडमिनिस्ट्रेशन। दो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, पहले होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, दूसरे होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मतलब जो आपके प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर्स हो गए, वो दे फ्रेम अ ब्रॉड गवर्नमेंट पॉलिसी। फॉर एग्जांपल न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, तो उन्होंने एक ब्रॉड पॉलिसी बना दी कि ये फलाना पॉइंट्स इस पे होने चाहिए ना। देन देयर आर परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। परमानेंट एग्जीक्यूटिव मतलब आपके आईएएस आईपीएस है ना, देन जो स्टेट पीसीएस होते हैं वो, तो दीज आर परमानेंट एग्जीक्यूटिव एंड दे लुक आफ्टर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। जैसे डीएम हो गया, एसपी हो गया, एसडीएम हो गया, तहसीलदार हो गए या पटवारी हो गए, तो ये जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है उसको देखते हैं, ठीक है। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, तो प्रेसिडेंट होता है कहाँ पे, यूएस में, सो दे हैव फुल एग्जीक्यूटिव पावर इन देयर हैंड, ठीक है। इन फ्रांस जो होता है वहां पे सेमी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है, तो वहां पे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और जो प्रेसिडेंट होते हैं, दे हैव ऑलमोस्ट
equal powers, even though prime minister is more powerful, but power is divided between president and prime minister, ठीक है. Then जो जापान है, जापान पे एक parliamentary system होता है with prime minister and head of the state जो होते हैं वहां के emperor होते हैं, ठीक है. So Japan is not a republic. Next is presidential system. प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो यूएस में है, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है, ही इज बोथ द हेड ऑफ द स्टेट, मतलब जो आपका स्टेट है, मतलब जो आपका कंट्री है यूएसए, एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट को भी जो हाईएस्ट डिग्निटरी होता है, स्टेट का भी हाईएस्ट डिग्निटरी होता है, वो कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है. सो दिस इज अ वेरी गुड डायग्राम. एक्चुअली जो आपका एनसीईआरटी है, दे हैव वेरी वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम्स व्हिच यू कैन यूज डायरेक्टली इन द, अगर आप कभी GS2 के आंसर वगैरह लिखोगे तो उस पे भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है. सो टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिस्टम होता है बेस्ड ऑन कलेक्टिव लीडरशिप. इसमें मतलब होता है कि पावर इज डिवाइडेड, ठीक है. और एक होता है इंडिविजुअल लीडरशिप, मतलब पावर इज ऑन वन हैंड. इंडिविजुअल लीडरशिप में प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है. प्रेसिडेंट क्या होते हैं? ही इज द हेड ऑफ द स्टेट, ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, he is directly elected by people and he is not accountable to legislature, ठीक है. हमारे यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर होता है, he is accountable to legislature. तो ये कौन है? यूएस के प्रेसिडेंट है. नाउ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमारा पार्लियामेंट, यहाँ पे हेड ऑफ जो गवर्नमेंट होते हैं उनको क्या बोला जाता है? प्राइम मिनिस्टर. और जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं उनको क्या बोला जाता है? प्रेसिडेंट. सो बोथ आर डिफरेंट. Then he is the majority, मतलब लोकसभा में मेजोरिटी होनी चाहिए, लोअर हाउस में दे आर अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर. एंड जो हेड ऑफ स्टेट, चलो ये मैं अभी डिस्कस कर लेते हैं. देन सेमी प्रेसिडेंशियल में क्या होता है? प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ स्टेट, प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ गवर्नमेंट, एंड यहाँ पे जो पावर है, इट इज डिवाइडेड बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट. नाउ जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अगर वहां पे मोनार्क है ना, जैसे फॉर एग्जांपल जापान हो गया या यूके हो गया जहाँ पे क्वीन है, सो दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. अगर प्रेसिडेंट है, ठीक है, इलेक्टेड, तो उसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री रिपब्लिक, जैसे इंडिया हो गया, ठीक है. और ये दोनों ही सेरेमोनियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, मतलब दे डू नॉट हैव एनी रियल पावर, ठीक है. दे आर जस्ट एक सेरेमोनियल हेड होते हैं ये, ठीक है. सो सेम चीज यहाँ पे भी है कि वी हैव अ पार्लियामेंट्री सिस्टम जहाँ पे जो पीएम है, ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और जो प्रेसिडेंट होता है, ही इज नॉमिनल, ठीक है. हाउएवर प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है. देखो, मेजोरिटी ऑफ जो भी काम प्रेसिडेंट करता है, ही डज इट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. तो कोई भी काम जो है प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशन पे नहीं करता है, मतलब वट एवर प्रेसिडेंट इज डूइंग, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग, है ना. हाउएवर देयर आर सर्टेन डिस्क्रिशनरी पावर जो कि प्रेसिडेंट के पास होती है, मतलब वो अपनी मर्जी से कर सकता है. पहला, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑन ऑल द इंपॉर्टेंट मैटर्स इन डेलिब्रेशंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो अगर लगता है कि किसी मीटिंग पे कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया गया है, तो प्रेसिडेंट कैन आस्क कि व्हाट वाज दैट डिसीजन, एंड पीएम इज ऑब्लाइज्ड टू फर्निश इट, ठीक है. मतलब पीएम को प्रेजेंट करना पड़ेगा. एंड सेकंड, ही कैन आल्सो राइट लेटर्स एक्सप्रेसिंग हिज व्यूज ऑन सर्टेन मैटर्स. अगर उनको लग रहा है कि किसी मैटर पे थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट, सो दे हैव इंडिपेंडेंस टू राइट letters to the prime minister or the ministers and asking them that this is not going in the right direction. उसके अलावा प्रेसिडेंट के पास 3 सिचुएशंस होती हैं. इन 3 सिचुएशंस प्रेसिडेंट हैज पावर कि जहां पे वो खुद अपनी मर्जी से पावर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है. पहला, कि अगर देयर इज अ बिल और एन एडवाइस बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फॉर एग्जांपल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं कि आप इमरजेंसी लगाइए, देयर शुड बी एन इमरजेंसी, ठीक है. सो प्रेसिडेंट हैज द पावर टू जस्ट टेल देम कि रिकंसिडर दिस एडवाइस, ठीक है, आप इसको एक बार फिर सोच लो. हाउएवर अगर फिर से भेजा जाता है आफ्टर रिकंसिडरिंग, देन प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्सेप्ट इट, ठीक है. देन प्रेसिडेंट हैज सर्टेन वीटो, है ना. दे कैन सेंड बैक द बिल फॉर पार्लियामेंट टू रिकंसिडर इट. दे हैव द पॉकेट वीटो. पॉकेट वीटो का मतलब होता है कि सपोज प्रेसिडेंट के पास कोई बिल गया है, सो देयर इज नो टाइमलाइन इन विद इन व्हिच द प्रेसिडेंट हैज टू सेंड बिल बैक टू द कैबिनेट, ठीक है. So there is no time limit, so that is called pocket veto. And after election, if there is no political party जिसके पास clear majority है, तो जो president है, he feels कि this party has the majority, he can invite them to form the government, and then obviously they will have to prove the majority in the house. Okay, then there is parliament and council of minister, ठीक है. तो गवर्नमेंट कब बनती है? when they have majority in the लोकसभा, ओके. और जो प्रेसिडेंट है वो डिसाइड करते हैं हु विल बी द मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. जो मिनिस्टर्स होते हैं वो अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है. हाउएवर जो रैंक और पोर्टफोलियो है मिनिस्टर्स का, फॉर एग्जांपल कोई अगर मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है, ठीक है, उससे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बना दिया जाता है. सो दैट इज डन बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है. जो पोर्टफोलियो एक्सचेंज करना है वो प्राइम मिनिस्टर. ये जो रैंक की समवन इज सपोज डिप्टी मिनिस्टर, वैसे तो होते नहीं है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, तो उससे उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाना है, तो दैट इज इन द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ
प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। नाउ जो सरकार होती है, जो आपकी गवर्नमेंट होती है, इट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, मतलब दे शुड हैव मेजोरिटी इन लोकसभा, है ना। सो इट शोज कि जो गवर्नमेंट है, इट इज बेसिकली एन एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ पार्लियामेंट। देन देयर इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ सॉलिडारिटी। इसका मतलब ये होता है कि ऑल द मेंबर्स ऑफ कैबिनेट, चाहे वो मिनिस्टर्स हो, चाहे वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हो, दे शुड स्टैंड फॉर ईच अदर, मतलब दे कैन नॉट स्पीक इन डिफरेंट लैंग्वेज, ठीक है। अगर कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है लोकसभा से, देन एवरी मिनिस्टर विल हैव टू रिजाइन, ईच एंड सिंगल मिनिस्टर विल हैव टू रिजाइन, ठीक है। इफ अ मिनिस्टर डज नॉट एग्री विथ द पॉलिसी ऑफ डिसीजन और कैबिनेट, दे विल हैव टू रिजाइन और एक्सेप्ट डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इज टेकिंग सम डिसीजन और मिनिस्टर ऑफ जो एनवायरमेंट है, ही डज नॉट एग्री विथ इट, he says कि it will lead to a lot of environmental damage, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो मिनिस्टर ऑफ रेलवे को बैक कर रहा है, तो इन दैट केस मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट विल हैव टू एक्सेप्ट द डिसीजन और दे विल हैव टू रिजाइन। दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर होता है, ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। तो अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करते हैं या उनकी डेथ हो जाती है, तो इट विल ऑटोमेटिकली लीड टू डिसोल्यूशन ऑफ कैबिनेट। ऑटोमेटिकली कैबिनेट जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। सो इसीलिए इनको लिंचपिन ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। लिंचपिन क्या होता है? जो व्हीकल होता है उसको जो बांधता है फ्रॉम, जो आपका व्हील होता है उसको जो व्हीकल से पिन बांधती है उसको, तो अगर वो पिन निकल जाएगी तो वो पहिया भी निकल जाएगा, है ना। सो दैट्स व्हाई पीएम जो है, ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कैबिनेट। नाउ परमानेंट एग्जीक्यूटिव यानी कि ब्यूरोक्रेसी, इसकी डेफिनेशन यूपीएससी प्री में पूछ चुका है, ठीक है। जो ब्यूरोक्रेसी होती है, दे आर परमानेंट एम्प्लॉयज ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, एंड दे असिस्ट गवर्नमेंट इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, ठीक है। पॉलिसीज बनाते हैं और उन पॉलिसीज को फॉलो करते हैं जो गवर्नमेंट होते हैं। दे आर पॉलिटिकली न्यूट्रल। देखो ये थियोरेटिकली है ना, बट थियोरेटिकली जो आपके ऑफिसर्स होते हैं, whether they are IAS or IPS officers, they are politically neutral. They cannot take political service. They cannot be part of a political party, ठीक है। तो इस पे आपकी जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, स्टेट सर्विसेज है, टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्टाफ से, वो सब आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मतलब जो लेजिस्लेट बना करते हैं, जो कानून बनाते हैं, ठीक है। सो व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट? First, obviously, to make laws, we need to make law, ठीक है। That is the center of all democratic political process. तो जो भी आपकी डेमोक्रेसी है, वो हाईएस्ट फॉर्म में क्रिस्टलाइज होती है पार्लियामेंट पे। यहाँ पे वॉकआउट्स होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस होते हैं, ठीक है। नाउ व्हाई डू वी हैव टू हाउसेस? एक लोकसभा, एक राज्यसभा। एक ही हाउस में भाई आप सबको सेलेक्ट करके भेज दो, वो कानून बना देंगे। व्हाई देयर आर टू हाउसेस? ठीक है। सो मेनली टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। बहुत सारे लोग हैं who can make good laws but they cannot win elections, ठीक है। then to give representation to all geographical regions of country, कि जो आपका केरला है, जो आपका वो जो आपके स्टेट्स है, they should also get representation in the union government, ठीक है। तो that they are represented by राज्य सभा, लिटरल नाम ही यही है राज्य सभा, ठीक है। सो दैट, और फिर फाइनली जो एक बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है। बाई कैमरल मतलब देयर आर टू हाउसेस, वहां पे इट मेक्स इट पॉसिबल टू हैव एवरी डिसीजन रिकंसिडर्ड, ठीक है। कि जो भी डिसीजन, अगर कोई हास्टी डिसीजन दिया है, कोई हास्टी बिल गवर्नमेंट ने पास किया है, तो द अदर पार्टी हैज द कि वो बिल को स्टॉल कर सकती है, और देयर इज चांस की देयर कैन बी अ रिकंसिडरेशन ऑफ दैट बिल, ठीक है। तो हमारे पास राज्यसभा है। इट इज एन इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी, मतलब इट इज यू इलेक्ट, यू आर अ पर्सन, यू इलेक्ट एमएलए, और जो आपके एमएलए है, दे इलेक्ट द एमपीज ऑफ राज्यसभा। तो दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है। बाय who? By residents of state elect members of state legislative assembly, ठीक है। फिर there is a symmetrical representation भी उस पे हो सकता है। symmetrical मतलब कि irrespective of the size of state, all states are provided a number of seats. For example, जो यूएस सेनेट है, जो यूएस का सेनेट है, वहां पे आप सपोज 50 स्टेट्स है यूएस में, तो 50 into 2 इक्वल टू 100 सीट्स हैं सेनेट पे, ठीक है। एवरी स्टेट हैज गॉट 2 सीट्स। बट जो इंडिया है, वहां पे सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट पॉपुलेशन, जिस स्टेट में जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है, तो यूपी विल हैव अ लॉट ऑफ मेंबर, और जो आपका असम है, इट विल हैव लेसर मेंबर, मणिपुर में इवन लेसर मेंबर, है ना। सो दिस इज देयर। देन ये 6 साल के लिए होती है जो राज्यसभा की मेंबरशिप होती है। इट नेवर डिसॉल्व्स, मतलब इट इज अ परमानेंट हाउस, एंड देन 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। जो लोकसभा होती है, इट इज डायरेक्टली इलेक्टेड फॉर 5 years।
देन फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, पहला तो लेजिस्लेटिव फंक्शन है, ये कानून बनाती है, ठीक है। अब कानून गवर्नमेंट भी ला सकते हैं, प्राइवेट मेंबर भी ला सकते हैं। देन इट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव, जो गवर्नमेंट है उसको कंट्रोल करती है, उसको क्रिटिसाइज करती है, ठीक है। देन फाइनेंशियल फंक्शन भी होता है, जो बजट्स होते हैं, मोशंस होते हैं, ये सब दे आर ऑल पास्ड बाय द पार्लियामेंट। देन दे कैन bring amendment to the constitution. They have electoral function, जो president vice president के elections होते हैं वो। they also have judicial functions, ठीक है। judicial function मतलब कि अगर president vice president judges of high court supreme court उनको remove करना है तो वो कौन remove करेगा? parliament remove करेगा, ठीक है। now these are powers of lok sabha rajya sabha, just go through them कि क्या क्या पावर्स है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस वी विल डिस्कस इन डिटेल इन व्हेन वी विल रीड द कॉन्स्टिट्यूशन, बट एक बहुत अच्छे वे पे यहाँ पे भी डिस्कस किया हो गया है, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू देम, ठीक है। बाकी क्या कहते हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू। नाउ इन जनरल आप याद रखना कि जो लोकसभा होती है इट इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा। लोकसभा हैज मोर पावर देन राज्यसभा। हाउएवर there are certain areas in which Rajya Sabha has more power, है ना। For example, if there is a constitution में 3 lists है ना, हम पढ़ेंगे उसको, central list, state list and concurrent list। तो if the government want to make central government want to make a law on state list, it cannot make it, but Rajya Sabha can allow it to make it, ठीक है। फिर सेकंड इज ऑल इंडिया सर्विस। अगर कोई भी ऑल इंडिया, देयर आर 3 ऑल इंडिया सर्विसेज इन इंडिया, आईएएस, आईपीएस एंड आईएफओएस, मींस इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। तो अगर कोई भी ऑल इंडिया सर्विसेज स्टैब्लिश कर रही है तो दैट विल बी स्टैब्लिश्ड बाय राज्यसभा, ठीक है। उसी तरीके से लोकसभा की क्या पावर है, जो मनी बिल्स होते हैं या जो है ना, दे आर इनिशिएटेड और रिजेक्टेड बाय सॉरी हाँ, मनी बिल जो है ये केवल और केवल लोकसभा में ही इनिशिएट हो सकते हैं या अमेंड हो सकते हैं। राज्यसभा हैज वेरी वेरी लिमिटेड पावर इन इन फॉर मनी बिल, ठीक है। देन को इक्वल कहाँ पे ये दोनों के पास बराबर पावर होती है? इन पासिंग ऑफ द ऑर्डिनरी बिल, अगर कोई नॉर्मल बिल है उसको पास करने में, इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड इन इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। दिस क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड इन यूपीएससी के इन की, जहां पे डिफरेंस पूछा गया था बिटवीन द पावर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। देन बिल बनता कैसे है? दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम जिसपे उन्होंने बोला हुआ है कि बिल कैसे बनता है, ठीक है। सपोज एक बिल आता है, आप एक कानून लाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल जो फार्मर बिल है, ठीक है, कोई भी बिल आप एक ला रहे हो, ठीक है, तो इसको आप ईदर हाउस पे ला सकते हो, ठीक है। अगर ये नॉन मनी बिल है, अगर मनी बिल है तो ओनली इन लोकसभा, सो यू कैन ब्रिंग इट ईदर इन लोकसभा और इन राज्यसभा। फिर क्या होगा, जब वो बिल आएगा तो उसको कमिटी में भेजा जाएगा। देयर आर नंबर ऑफ कमिटीज इन पार्लियामेंट, उनको भेजा जाएगा, दे विल डिस्कस द बिल, ठीक है, इन डिटेल। उसके बाद वो कमिटी अपनी रिपोर्ट देगी, और वो रिपोर्ट कहाँ से देखेगी? कमिटी जो इट विल डिस्कस द इशू विथ फार्मर्स, विथ जो कैपिटलिस्ट हैं वो आर इन्वेस्टिंग इन फार्मिंग सेक्टर, जो पीपल का इनपुट है उनको लेके दे विल पुट द रिपोर्ट। हाउस मे और मे नॉट एक्सेप्ट द रिपोर्ट, देन देयर विल बी अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन द बिल, देन बिल कैन बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, ठीक है। अगर रिजेक्ट हो गया तब तो कोई बात ही नहीं है, एक्सेप्ट हो गया तो इट विल गो टू द अदर हाउस, और वहां पे सेम यही प्रोसेस होगी, है ना। अगर दूसरा हाउस जो है वो भी अप्रूव कर देता है, रिकमेंड कर देता है, सॉरी, अगर दूसरा हाउस रिजेक्ट कर देता है, सपोज फर्स्ट हाउस हैज एक्सेप्टेड बट सेकंड हाउस रिजेक्ट्स इट और प्रेजेंट्स अमेंडमेंट जो कि नहीं एक्सेप्टेबल है फर्स्ट हाउस को, देन देयर कैन बी अ जॉइंट सेशन। बट अगर ये एक्सेप्ट कर देता है तो इट विल गो टू प्रेसिडेंट, एंड व्हेन प्रेसिडेंट विल साइन इट, इट विल बिकम अ बिल। सो यू कैन सी इट इज अ क्वाइट अ रिगरस प्रोसेस, है ना, एक बहुत टफ प्रोसेस होती है बिल पास करने की। अब बिल दो तरीके के होते हैं, अगर कोई मिनिस्टर लाते हैं, सब मिनिस्टर हैज बॉट अ बिल, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट बिल, पर अगर नॉन मिनिस्टर लाते हैं तो दैट इज कॉल्ड प्राइवेट मेंबर बिल, ठीक है। इसके बहुत कम चांसेस होते हैं पास करने के, बट स्टिल इट हैज बीन पास, और इसमें क्वेश्चन भी पूछा हुआ है यूपीएससी में। नाउ हाउ डू पार्लियामेंट कंट्रोल्स एग्जीक्यूटिव, मतलब जो पार्लियामेंट है आपका, वो आपकी जो गवर्नमेंट है उसको कंट्रोल कैसे करता है, ठीक है। So it controls it with deliberation and discussion. Debate होती है, there are question hours, 0 hours, so they criticize the government, they ask question from the government, then they can approve or ramify the law. There is financial control, जो budgets वगैरह हैं, जो public accounts committee होती है, CAG होती है, so they look कि whether the government is spending the money in the right way or not. Then no confidence motion, ultimate weapon. If they feel that government does not have the confidence of the house, then they can remove the government, ठीक है। Now, what are parliamentary committees?
सी पार्लियामेंट पूरे साल तो सेशन पे रहता नहीं है, नीदर डू एमपीज हैव द टाइम नॉर द एक्सपर्टीज टू डिस्कस एवरीथिंग। तो उस पे क्या होते हैं, फॉर इन डेप्थ स्टडी दे फॉर्म द कमिटीज, वो कमिटीज क्या होती है, इश्यूज को डिस्कस करते हैं एंड देन दे गिव देयर रिपोर्ट, ठीक है। सो दैट्स व्हाई कमिटी इज रिक्वायर्ड। सो वी हैव, हमने एग्जीक्यूटिव भी पढ़ लिया, ठीक है, हमने लेजिस्लेचर भी पढ़ लिया, नाउ वी विल स्टडी जुडिशरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू वी नीड इंडिपेंडेंट जुडिशरी? सिंपल सा मतलब ये है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्यों होनी चाहिए? बिकॉज वी हैव टू प्रोटेक्ट द पीपल, सो वी हैव टू प्रोटेक्ट द लॉ एंड वी हैव टू इंश्योर द सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एंड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ सिटीजन। सो दैट्स व्हाई there should be an independent judiciary, ठीक है। Now independence कहाँ पे जुडिशरी के? अपॉइंटमेंट पे, मतलब गवर्नमेंट इज नॉट पार्ट टू इट, देयर इज फिक्स्ड टेन्योर, you cannot remove the judges easily, their judges are not financially dependent on government, there is contempt power, मतलब कि if you are not following the judgment of the courts, they have the power to punish you for that, and then parliament cannot discuss the conduct of the judges, कि judges जो भी कर रहे हैं within the court, तो parliament में you cannot criticize it, ठीक है। इन जनरल जो आपके चीफ जस्टिस होते हैं ऑफ इंडिया, दे ही इज द सीनियर मोस्ट पर्सन, तो क्या होता है, द पीपल हैव द मोटिवेशन कि वन डे दे विल बिकम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, दे विल बी प्रमोटेड टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देयर हैज बीन टू एक्सेप्शंस इन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी, जब 1973 में एएन रे, जस्टिस एएन रे, एंड 1975 में एमएच बेग, जस्टिस एमएच बेग, इनको सुपरसीड कर दिया गया था, दे वर नॉट सीनियर, ठीक है। बट जनरली अब जो इंडिया में सीनियरिटी प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है, ठीक है। देन रिमूवल, दे कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ठीक है। बट टिल नाउ नॉट अ सिंगल जज हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम इंडिया, बट देयर वाज वन मोशन अगेंस्ट रिमूवल ऑफ जजेस एंड दैट वाज जस्टिस रामास्वामी, ओके। Now, structure of judiciary. Structure of judiciary is pyramidal, single and integrated. Pyramidal means कि जो bottom है वो बहुत ज्यादा है, जो टॉप में केवल एक ही कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट फिर उससे ज्यादा है, एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आर द हाईएस्ट। देन इट इज सिंगल, कि मतलब एक ही कोर्ट से, एंड दे आर इंटीग्रेटेड। जो यूएस है वहां पे जो आपकी फेडरल कोर्ट होती है और जो सुप्रीम कोर्ट होती है, दे आर नॉट लिंक्ड, मतलब जो आपका फेडरल कोर्ट का जजमेंट है दैट इज फाइनल, दैट विल नॉट गो टू सुप्रीम कोर्ट, बट जो इंडिया है दे हैव अ इंटीग्रेटेड जुडिशरी, यू कैन गो फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू हाई कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट, ओके। नाउ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हाईएस्ट, इट्स डिसीजन इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, ठीक है, और इट कैन ट्रांसफर केसेस फ्रॉम वन कोर्ट एंड हाई कोर्ट। देन देयर इज हाई कोर्ट, देन देयर इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे जो होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं ना, जो मुंसिफ कोर्ट हो गए या जो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्ट होते हैं, दे जो आपके सिविल और क्रिमिनल क्राइम्स होते हैं, दे लिसन टू दोज क्राइम्स, ठीक है। नाउ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या क्या करता है, तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या है? ओरिजिनल का मतलब होता है इट कैन बी हर्ड ओनली बाय सुप्रीम कोर्ट एंड नो वन एल्स, neither any high court, neither any district court can hear those cases। तो ओरिजिनल जो डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन स्टेट एंड अमंग स्टेट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट, जो ये केसेस होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ दे आर हर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट एंड नो वन एल्स। एपिलेट मतलब ये होता है कि फ्रॉम लोअर कोर्ट टू हायर कोर्ट, के हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पे जो केसेस जाते हैं, दे कैन आल्सो बी हर्ड इन सिविल, क्रिमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, बट देयर इज अ सर्टेन क्राइटेरिया, अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल होगा तभी जो है वो कोर्ट्स इनको केसेस को सुनती है, ठीक है। एंड देन दे हैव एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, सो दे कैन एडवाइज प्रेसिडेंट ऑन द मैटर ऑफ इंपॉर्टेंट, कोई इंपॉर्टेंट लॉ से रिलेटेड मैटर है उस पे। देन दे कैन आल्सो इशू रिट्स, ठीक है, रिट्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं आर्टिकल 32 के तहत। And then they have a special power also, that is called special leave petition, SLP, under article 142 I feel। So they can grant special leave to an appeal from any judge, मतलब सिंपल सा मतलब है कि they feel that there is a gross misconduct of justice, कि किसी के साथ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, तो in that case they can put a petition in that, or they can stop the judgment in that, ठीक है। Now appellate जो jurisdiction है, तो because high court is the highest court of appeal, so देखो ऐसे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लाखों केसेस, करोड़ों केसेस होते हैं, सो एवरी केस विल गो टू सुप्रीम कोर्ट बिकॉज वन पार्टी विल नॉट बी हैप्पी विद द जजमेंट, है ना। सो इन दैट केस क्या होता है कि जो भी केस सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहा है, हाई कोर्ट विल सर्टिफाई इट कि दिस इज फिट फॉर अपील, है ना।
unless it is not fit for appeal, it will not go to Supreme Court. So first जो High Court है, they will have to certify it, and only the serious matters of interpretation of law or constitution they go to Supreme Court. ठीक है. Next is judicial activism. इसका मतलब ये होता है कि जब judiciary है, it works for it works in under the executive branch and not under executive branch, पर ये execute करने लगती है instead of doing the judicial functions के. For example, Supreme Court बोलेगी कि BCCI के जो members होंगे वो कैसे decide होंगे, वो हम decide करेंगे. Now that is the not the work of judiciary. Yeah, they will say कि this exam should be conducted on this way. That is not the work of judiciary. So when they do such kind of work, that is called judicial activism, which is good to some extent, but it should not be too much, because courts are already overburdened first of all, and then it blurs the separation of power. ठीक है, separation of power है between legislature, executive and judiciary. तो अगर judiciary will start coming into the sphere of executive, that is not good for the function of constitution. ठीक है. उसके बाद आर्टिकल 32, 226 एंड 13 दे मेक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट को, एंड इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. दिस वाज आस्क्ड इन यूपीएससी एंड अ लॉट ऑफ पीपल जो है दे मतलब वो प्रेसिडेंट को लगा के आए थे, है ना. तो यहाँ पे क्लियरली दैट्स व्हाई एनसीईआरटीज आर इंपॉर्टेंट. यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, दे आर द प्रोटेक्टर ऑफ एंड फंडामेंटल राइट्स एंड द अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. जुडिशियल रिव्यू की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं कि व्हिचएवर अगर कोर्ट्स को लगता है कि जो लॉ है इट इज क्रॉसिंग द लाइन, देन दे कैन मतलब उस लॉ को वो अल्ट्रा वायर्स घोषित कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज फेडरलिज्म. सो फेडरलिज्म क्या होती है? इट इज एन इंस्टीट्यूशन टू अकोमोडेट two or more set of policies. ठीक है. So there are multiple sets of government. There is central government, there is state government, then there is local government. ठीक है. So मेनली चलो अगर हम फेडरलिज्म को भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पढ़ते हैं, सो इट इज अ ड्यूअल सिस्टम व्हिच इज स्पेल्ड आउट इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. तो जब भी जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल गवर्नमेंट होगी, वहां पे देयर शुड बी अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो. देन देयर शुड बी अ इंडिपेंडेंट जुडिशरी आल्सो. व्हाई इंडिपेंडेंट जुडिशरी? बिकॉज अदरवाइज जो स्टेट है दे आर वीकर इन पावर इन कंपैरिजन टू जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है. सो दैट्स व्हाई स्टेट विल नेवर बी इन अ पावर टू compete विद सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है. तो सो टू चेक सेंट्रल गवर्नमेंट वी नीड इंडिपेंडेंट जुडिशरी. ठीक है. इंडिया में जो फेडरलिज्म है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी एंड कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. ठीक है. और जो पावर से सेपरेट स्टेट को दी गई है. ठीक है. देयर इज अ क्लियर डिलिमिटेशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, और वो किस पे दिया हुआ है? लिस्ट पे. ठीक है. जो आपका शेड्यूल 7 है, there are 12 schedules in constitution, उस पे जो 7th शेड्यूल है उस पे 3 लिस्ट दी गई है. यूनियन लिस्ट, इस पे केवल सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है. स्टेट लिस्ट, ओनली स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ, एंड कंकरेंट लिस्ट, बोथ कैन मेक लॉस. है ना. इनके कुछ एरियाज याद रखना, जैसे डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी हो गया, पोस्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, करेंसी हो गया, दीज आर ऑल अंडर स्टेट लिस्ट. फिर आपका एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ हो गया, पब्लिक हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, लैंड, लिकर, ट्रेड, कॉमर्स, ये सब स्टेट लिस्ट पे आती है. एंड देन कॉन्करेंट में एजुकेशन हो गया. सो रिमेंबर जो हेल्थ है दैट इज इन स्टेट लिस्ट, बट जो एजुकेशन है इट इज इन कॉन्करेंट लिस्ट. ठीक है. फिर आपका जो फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड यूनियन, एडल्ट्रेशन, सो दीज आर ऑल कम्स अंडर कॉन्करेंट लिस्ट. नाउ देयर इज रेसिडुअरी पावर. रेसिडुअरी पावर मतलब कि द आइटम्स व्हिच आर नॉट मेंशन्ड इन लिस्ट. ठीक है. तो उस पे कौन कानून बना सकता है? उस पे सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट कानून बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकती है. दिस फीचर कम्स फ्रॉम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. फॉर एग्जांपल साइबर लॉज. जो साइबर लॉज है they are not mentioned in either in state list or union list or concurrent list. So who can make laws on cyber laws? Only central government. Now we have a strong center. ठीक है. We have a strong center मतलब जो states हैं they are much weaker in comparison to central government. ठीक है. State do not even have a territorial integrity. For example, आंध्रा जो था, आंध्र प्रदेश, जो assembly थी, it did not wanted कि जो आंध्र प्रदेश है it should be divided with and Telangana should be formed, but still central government made it. ठीक है. So जो state है उनके पास territorial integrity ही नहीं है. Then there are emergency provisions. We will read about them. Article 250, 352, 356 and 370. So in that जो emergency power में central government will have a lot of power in comparison to your state government.
देन गवर्नर जो है, ऑफिस ऑफ गवर्नर है, इट कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट. देयर आर ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS, IPS, so they are directly selected by union government, but they serve the state government, but mostly they are loyal to the central government. ठीक है. And then central can legislate on state list, as हमने पहले ही डिस्कस किया है कि राज्य सभा can allow center so that they can legislate on state list. Now, because of all these provisions, obviously there will be a conflict between central and state. Prime Minister Modi and suppose there are chief ministers, उनके बीच में there will be always be a tussle, especially if chief minister are from different party. ठीक है. जो conflicts है वो 1990 से और ज्यादा बढ़ रहे हैं. ठीक है. So conflicts अलग अलग है. For example, some states just want more autonomy. Some state wants more power, कि states के पास ज्यादा power होना चाहिए. For example, Tamil Nadu and France. Tamil Nadu and Punjab. Then some state want financial autonomy, some want more administrative power, some want कि their cultural and linguistic rights they should be protected. ठीक है. Then there is on the role of governor, सरकारिया कमीशन. दिस क्वेश्चन डायरेक्टली आर्टिकल UPSC 2020 में पूछा हुआ था. सरकारिया कमीशन किस लिए बनी थी? सरकारिया कमीशन वाज फॉर्म्ड टू स्टडी द सेंटर स्टेट रिलेशंस, और उन्होंने रिकमेंड किया था कि जो गवर्नर है, दे शुड नॉट बी अ पार्टिसन पर्सन, मतलब कि ही शुड नॉट बी अ पॉलिटिकल पर्सन एंड शुड बी अ पर्सन ऑफ वेरी हाई मेरिट. ऑब्वियसली कोई फॉलो नहीं करता इसको. ठीक है. द नेक्स्ट इज देयर इज अ डिमांड फॉर न्यू स्टेट, कि नया स्टेट आप बनाओ. देयर आर इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट, वेदर इट इज वाटर, वेदर इट इज फॉर एग्जांपल बॉर्डर डिस्प्यूट भी है, वाटर डिस्प्यूट भी है. कावेरी वाटर डिस्प्यूट है तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में. ठीक है. एंड देन देयर इज अ इशू ऑफ एसिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन. एसिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि सम स्टेट हैव मोर पावर. फॉर एग्जांपल, अंडर आर्टिकल 370 अर्लियर Jammu Kashmir had more power in comparison to other states. Now also under Article 371, a number of states have more power in comparison to other states. तो ये भी एक इशू उठता रहता है. ठीक है. नेक्स्ट इज लोकल गवर्नमेंट. लोकल गवर्नमेंट मतलब जो आपकी पंचायती राज हो गई, या जो आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपल काउंसिल्स हो गए वो. ठीक है. सो दे गॉट constitutional status in 1993. ये आपका विलेज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं. दे आर क्लोजेस्ट टू पीपल बिकॉज यू कैन वेरी इजिली, यू कैन नॉट talk to your MPs or MLAs that easily, but you can easily talk to your sarpanch or ward member very easily. So they provide people friendly administration, and they are also required for a vibrant democracy, for active participation and purposeful accountability. Now growth of local bodies, अब ये बहुत पुराना, ये पूरा हिस्ट्री है, बट रिमेंबर कि जो लॉर्ड रिपन है in 1882 he started it, and he is also called as the father of local government. ठीक है. वहां से ये हिस्ट्री वाला है. जस्ट इसमें दो इश्यूज आप पढ़ लो. एक थे गांधी, बिकॉज दिस जो ये आइडिया है इट कैन बी आस्क्ड इन UPSC. जो गांधी थे, ही टॉक्ड अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन. सो ही ऑलवेज सेड कि जो लोकल गवर्नमेंट होती है ना, विच आर एट द बॉटम ऑफ द लैडर, दे शुड हैव अ लॉट ऑफ पावर इन कंपैरिजन टू जो अदर गवर्नमेंट्स है वो. ठीक है. बट जो BR अम्बेडकर है, ही वाज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ लोकल गवर्नमेंट बिकॉज ही सेड कि जो कास्ट फैक्टर है वो बहुत ज्यादा काम करता है इन द विलेजेस. सो देयर शुड नॉट बी अ लोकल गवर्नमेंट, देयर शुड बी स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. फिर इट स्टार्टेड विथ फर्स्ट एज कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 1952. ठीक है. उसके बाद कई सारी चीजें हुई. देन फाइनली 1987 में PK थंगटन कमीशन थी. The committee, they decided that these जो ये आपके constitution जो आपके local bodies है, they should get constitutional recognition. This question was जो आपका हरियाणा स्टेट सर्विसेज है उस पे जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था 2021 में, this has directly, this question was picked from this NCERT. ठीक है. PK थंगटन कमिटी. Then 73rd and 74th amendment. 73rd amendment है for village जो क्या कहते हैं आपका लोकल गवर्नमेंट है, एंड 74th इज फॉर अर्बन लोकल बॉडीज. ठीक है. तो यहाँ पे सबसे नीचे ग्राम पंचायत होती है, देन ब्लॉक लेवल पे मंडल या तालुका पंचायत, एंड देन जिला पंचायत एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. इट इज मैंडेटरी टू फॉर्म अ ग्राम सभा जो डायरेक्टली होता है. एंड हु विल बी पार्ट ऑफ ग्राम सभा? ऑल द एडल्ट मेंबर्स हु आर रजिस्टर्ड एज वोटर इन द पंचायत एरिया. ठीक है. देन इलेक्शंस होते हैं, रिजर्वेशन होते हैं. रिजर्वेशन इवन इन द पोस्ट ऑफ चेयरमैन या जो अध्यक्ष है वहां पे भी रिजर्वेशन होते हैं. ठीक है. देन 29 सब्जेक्ट्स तो हैं, दे हैव बीन गिवन इन 11th शेड्यूल कि ये जो 29 एरियाज है यहाँ पे आपका जो लोकल बॉडीज है दे कैन वर्क.
दे आर नॉट एप्लीकेबल, जो आपका 73rd अमेंडमेंट है, दे आर नॉट एप्लीकेबल इन आदिवासी एरियाज। तो वहां पे एक नई एक्ट है, पेसा एक्ट 1996, मतलब जो आपका पंचायती राज एक्सटेंशन एक्ट है, वो वर्क करता है वहां पे। देन इट आल्सो प्रोवाइड्स फॉर स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है। इसके अलावा इसकी सक्सेस और लिमिटेशन हम डिस्कस कर सकते हैं, वेदर जो आपका लोकल गवर्नमेंट है, इट हैज सक्सीडेड और इट हैज नॉट सक्सीडेड, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब ये होता है कि ये अमेंड होता रहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जस्ट लाइक एन ऑर्गेनिज्म ग्रोज, कि पहले आप बच्चे थे, then you are adult, then one day you will become old. In the same way your constitution also keeps on changing. कुछ जो constitution है, कुछ countries हैं, they have frequently, यहाँ पे amended लिखा हुआ है, changed their constitution, जैसे फ्रांस है, उसके 5 constitution आ चुके हैं आज तक, they have completely changed their constitution itself, ठीक है। लेकिन जो हमारा constitution है, it provides for enough flexibility to amend it, ठीक है। तो कैसे अमेंड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को? 3 तरीके होते हैं अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। एक सिंपल अमेंडमेंट होता है अंडर ऑर्डिनरी लॉ, फिर एक होता है जिसपे यू वांट स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, एंड देन इन वन यू वांट सब स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट प्लस हाफ ऑफ द स्टेट शुड रेक्टिफाई, ठीक है। इसको हम डेप्थ में पढ़ेंगे व्हेन वी विल रीड अबाउट द अमेंडमेंट, ठीक है। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है 2/3 ऑफ द पीपल प्रेजेंट एट वोटिंग एंड 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। दिस ऑल्सो वी विल डिस्कस व्हेन वी विल, क्योंकि ये डेप्थ वाले इन डेप्थ टॉपिक है, तो हम आगे वैसे भी इसको डिस्कस करेंगे। देन व्हेनेवर देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, देयर इज नो नीड टू ब्रिंग अ रेफरेंडम, ठीक है। मतलब पब्लिक से पूछने की जरूरत नहीं है कि वेदर देयर शुड बी दिस अमेंडमेंट और नॉट, ठीक है। So there has been different kind of amendments, जैसे आर्टिकल 42nd अमेंडमेंट जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, या 52nd अमेंडमेंट ऑफ 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जिसमें एंटी डिफेक्शन लाया गया था, ठीक है। अभी बिकॉज ऑफ द महाराष्ट्रन क्राइसिस जो एंटी डिफेक्शन है, इट इज टू मच इन न्यूज। देन 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, ठीक है। फिर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन और जो मैच्योरिटी ऑफ लीडरशिप है, उसके कारण अब जो अमेंडमेंट्स है वो बहुत कम हो गए हैं। अर्लियर स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी, a large number of जो आपके amendments है, they used to bring, ठीक है। फाइनल द फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी है, कल हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं इन द पॉलिटिकल थ्योरी वाला चैप्टर, बट स्टिल वी विल डिस्कस अबाउट दिस कि वी हैव सर्टेन मोरल विजन्स लाइक आइडिया ऑफ इक्वालिटी, आइडिया ऑफ लिबर्टी। So that is the one philosophy of constitution. Our constitution prevents tyranny. जो हमारी गवर्नमेंट है वो tyrannical नहीं हो जानी चाहिए ना. There should be some accountability of the government, and it allows for social transformation. Casteless society, एक society जहाँ पे men और जो women है, they have equal rights. ठीक है? So this is all allowed and possible by constitution. ठीक है? You have to read the Constituent Assembly debates to truly understand the meaning of constitution. जो debates हुई थी, discussions हुए थे Constituent Assembly के, which are of high merit, high value. So if we will read them, we will know what was the ideas जो हमारे freedom fighters ने discuss किए थे. ठीक है? Now it is committed to individual freedom. You have the freedom to live, you have the freedom to marry whoever you want, you have the freedom to go wherever you want, you have the freedom to become whatever you want, है ना? You have the freedom of religion. So it is committed to individual freedom, and it has a strong liberal character. It is a very liberal in its outlook. Then it has a strong social justice component, ठीक है? तो क्योंकि reservation दिया जाता है. Then there is a respect for diversity and minority rights. There is secularism, हमने बहुत depth में कल discuss किया था. There is universal adult franchise. Then there is federalism, जो कि asymmetric है, मतलब some states get more power than another, ठीक है? And federalism also protects the local identity. And then it is faith in political deliberation and shows the spirit of compromise and accommodation. मतलब a lot of ideas were compromised because they could not be मतलब ये भी, it is also a hallmark feature of democracy when there is a debate, there is a discussion, and then your ideas are not implemented in the constitution, but you still accept the constitution. Okay, so this was the second book, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो 2 बुक्स हमने 2 सेशन में कवर कर ली हैं, विच आई कैन टेल यू कि 85% ऑफ द पीपल हु प्रिपेयर फॉर यूपीएससी दे नेवर रीड दीज बुक्स. ठीक है? ये जो पीडीएफ है, इट हैज कवर्ड एवरी पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो with this PDF you do not have to read these books because जो ideas है, जो examples हैं, या जो important flow charts हैं, they have also been added
in this PDF. Okay, so if you want to ask anything, you can ask. I think this was the last open session. Ab those who are the member of Phoenix, so the next class at 3 से start होगी. So now we will start the polity, so they can sit in those class and we will continue this thing. So if you want to ask anything, you can ask. Otherwise, we will end the session. Sir, classes कब से हैं? Monday से? 18th से. Okay, sir. Sir. Hello. Yes, Supriya. Sir, you said that we do not have the right to conversion. So Yes. does that mean that if tomorrow I decide to convert to Christianity, then Yes. can the state declare that this conversion is invalid or something? No, see, right to convert is not a fundamental right, but it is not like कुछ states में है, but it is not prohibited here that you can convert. You can convert on your own will, but ये कोई constitutionally protected right नहीं है. मतलब कि government can bring laws to prevent conversions. Okay, got it. List system, Shoaib, we will discuss in detail in the class because it is a big topic, long topic. फिर वो बहुत एक लगभग 15 मिनट लग जाएगा उसको अच्छे से explain करने को. But basically it means कि there is you have to put priority कि number 1, number 2, number 3, number 4, and the person जो सबसे ज़्यादा number 4 जिसको मिलता है, मतलब the person who will get last vote, तो he will be eliminated. But उसको कई लोगों ने फर्स्ट वोट दिया होगा उसी पर्सन को, हैज गॉट एलिमिनेटेड, है ना, तो उसके फर्स्ट वोट को हटा के देन जो सेकंड वोट जिन्होंने दिया था, मतलब सेकंड प्रायोरिटी में, सो दैट्स व्हाई इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड कि जो सेकंड प्रायोरिटी में जो रखा था दैट विल बिकम द फर्स्ट वोट एंड दोज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द अदर मेंबर्स. तो जो वो कोटा, जो एक मिनिमम कोटा है, व्हिचएवर विल पर्सन विल रीच दैट कोटा, सो दे विल विन द इलेक्शन. So do you have any other question or we will end the session? Okay then. Thank you.